Hello, friends. Hello. Uh, is my voice audible to all? Hello. Okay. So I hope all are doing well, and I'm also good. I'm also fine. Before starting a new topic and expressing my ideas upon that, firstly, I would like to recap whatever was done in the last classes. And since we had begin with द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें हमने स्टार्टिंग से अपना एक एक यूनिट बहुत आराम आराम से कंसाइज वे में कवर किया है whatever I have discussed till now it was all written in institute's module and if I speak in easy terms in general language I would mean that whatever has been discussed, whatever has been told from my part was purely based on Institute's module. Nothing was there out of it. So, whatever the ICAI, our Institute of Chartered Accountants of India, prescribes, whatever material they recommend, whatever study notes and all, whatever they suggest and advise, only those have been considered for the teaching purpose. Okay. Now, if I try to, modify it by converting the material into my presentations, then also it has no change. It carries no such amendment, no such modification because whatever I am picking up, whatever information or data I am trying to pick up, it is purely from institute study material even if I'm preparing my own presentations or my own notes and presenting it in front of you people. So I hope covering all these sessions and all these lectures would have given you a lot of benefit. And after, analyzing and going through whatever I taught in the last classes, in the last sessions, I hope you people are able to understand my way of teaching and uh, besides this you people are able to interpret whatever I am trying to convey in business laws topic, business laws subject basically. So I don't want to, take much of your time because since you people are CA students and it is the beginning of CA course, CA foundation is the first level, the, first and the foremost level of chartered accountancy course, which is the core level, which is the basics level. So each and everything related to provisions, if I talk about my subject, all the provisions, whatever sections I take up in the class, in each class they have a value, they carry a substance, and it is very important to understand them from the core of your heart because otherwise what will happen is even if I try to teach you, even if I devote my best in order to you know convey my idea towards you people and give my 100%, but if you all will not take any sort of effort in studying this subject in you know in the form of self study, basically what I'm trying to say, if you people don't study it after I deliver my lectures, then it is a waste, then it is purely a waste of time. So I would like to convey this in short that please, whatever I try to teach you, whatever idea I am trying to convey to you people, please try to grasp it. If you face any problem, please mention me on the comment box. Do send your suggestions, your feedbacks, and I would be loving to see them. I would be sincerely loving to see them. So do send your comments, do send your feedbacks, whatever suggestions you people would recommend, I would surely take upon. And besides this,
regarding any such queries related to like revision test papers, mock test papers, or maybe suggested whatever the institute prescribes, and the questions which are there in the modules in each and every chapter at the end after the summary, they also need to be discussed very carefully. But since I am completely focusing currently on the explanation part, so what I am thinking is, like, once the explanation part of this current topic, like this current chapter, Indian Contract Act, the whole gets completed, finished, then I'll begin with the question and answer format and how to write in law, how to respond, ठीक है, to questions whatever they are asking, whatever they give in their revision test papers or maybe mock test papers, and what sort of questions are there, what sort of confusions are created in the mind of the students. So these things I am thinking, like, what I feel is that I would be taking this part after the explanation part gets over. So now, beginning with this topic, breach of contract, first of all, I would like to tell you people that we are done with almost how many units? Can anyone tell me? We are done with the 4 units of Indian Contract Act, where the first was nature of contract, the second was consideration, the third was other essential elements, and the fourth was performance, which was pretty much bigger than the previous ones. So now, beginning with Unit 5, breach of contract and its remedies, basically, I would suggest you people, please, rather, I would advise you people, please go through all those 4 units which we had discussed before. And this topic, breach of contract, is basically it's covering those areas where contract is broken, where it is not carried forward, where it is not executed in a proper manner. So basically, it is talking about those reasons, those consequences, you may say, those situations where the contract is not taken forward, it is not taken further. ठीक है? And in the midway, or maybe in the initial phase, it gets completely broken. ठीक? तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली. क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में आज हम समझेंगे. सबसे पहले, now see, what is there in this topic is, I would like to mention whatever I am trying to teach, as I earlier mentioned, जो भी टॉपिक्स कवर होंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी प्योरली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कवर हो रहे हैं. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसके बाहर ही हो, जो मैं आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कस करूं आपसे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें हमारे 3 बेसिकली सब डिविजन्स हैं जिसके बारे में बात की गई है. 3 सब डिविजन्स हैं. पहला है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये चैप्टर ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एंड अप हो सकता है, बीच में ब्रेक हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, तो क्या उसकी रेमेडीज नहीं बता सकता है? वो बिल्कुल बता सकता है. बिल्कुल इसके पूरे चांसेस हैं कि वो रेमेडीज भी बताए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, उसको बहुत जल्दी ही कवर किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. बट इफ आई टॉक अबाउट रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो रेमेडीज में बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं, जैसे कि suit for damages, rescission of contract, suit for specific performance, suit for injunction, suit upon quantum merit. अब ये टर्म्स ऐसे हैं, बेसिकली these terms are pure law terms and
You people, because you all are beginners, you all will be covering, or you all will be covered in the category of layman. So it would be difficult in the starting to understand these kind of terms, these kind of words. Some of them would be thinking, what kind of vocabulary is required to understand? No such vocabulary is required. But since you people are future chartered accountants, so you should know each and every word in detail. And we would be discussing, specifically I would be discussing these words in detail. I would be covering these in detail. सो आज जो टॉपिक है हमारा बेसिकली, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। ठीक, तो अब इन टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात करते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट ए कर रहा है बी से 15 जुलाई को कि आई विल बी सप्लाइंग यू कॉटन बेल्स। कॉटन बेल्स मतलब बहुत बड़े बड़े जो रोल्ड कॉटन नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको बेल्स बोलते हैं। बेल्स में उनका मेजरमेंट होता है, तो रोल्स होते हैं वो बेसिकली, जिसका मेजरमेंट बेल्स में होता है। तो मान लीजिए एक पार्टी ने, ए है पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बी से दैट आई वुड बी सप्लाइंग यू 10 बेल्स ऑफ कॉटन, और एक सम डिसाइड कर लिया है, मान लीजिए 10,000 रुपये 14 अगस्त को, और ये कॉन्ट्रैक्ट वो कर रही है 15 जुलाई को। मतलब लगभग एक महीने के अंदर अंदर सप्लाई कर देंगे। एंड 30 जुलाई को, मान लीजिए 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 15 अगस्त 14 अगस्त को सप्लाई होगी। 30 जुलाई को बी बोल रहा है ए से, नहीं बी नहीं बोलेगा, ए बोलेगा जो सप्लाई कर रहा है। 30 जुलाई को ए इन्फॉर्म कर रहा है बी को दैट आई वोंट बी एबल टू सप्लाई द कॉटन बेल्स ऑन 14th। तो इसमें पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का रिजेक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट को ना परफॉर्म करने की बात हो रही है, परफॉर्मेंस ना करने की बात हो रही है। तो ये बात हो जाएगी एंटिसिपेटरी ब्रीच की। यानी कि कोई भी टाइम अगर परफॉर्मेंस का फिक्स किया जाता है, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए। बहुत से ऐसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वेयरइन लड़की वाले एंड लड़के वाले, लाइक दीज आर टू पार्टीज विच आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, वन ऑफ द पार्टी breaches the contract before the time fixed for marriage, तो वो anticipatory breach हो जाएगा। breaches the contract, breaks the contract, rejects the contract, कोई भी word यूज करो, लेकिन express rejection मिल रहा है अगर, तो वो anticipatory breach हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब जो उसका specified duration है, time period है, उससे पहले हो रहा हो। तो अगर प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा है और पूरी तरह से अपनी अनविलिंगनेस दिखा रहा है टाइम पीरियड से पहले, लेकिन जो टाइम फिक्स्ड है परफॉर्मेंस का, उससे पहले प्रॉमिसर कह रहा है कि भाई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं करना चाहता हूं, तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा। इसमें भी एंटिसिपेटरी ब्रीच दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो रिटन एक्सप्लेनेशन लिख के दे, क्योंकि उनका अग्रीमेंट जब हुआ था तो वो भी रिटन हुआ था। तो इसका मतलब अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो रही है तो वो भी रिटन होगी। वो डिपेंड करता है म्यूचुअल डिस्कशन पे। ठीक, या तो रिटन होगा या फिर स्पोकन होगा। ओरली भी बोल सकता है कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट में विलिंग नहीं हूँ, या उसके कंडक्ट से ही पता चल जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो आज के टाइम पे ये भी है, whenever any kind of agreement is taking place between two or more parties, and if one of them their gestures, ठीक है, their actions are expressing that they are not interested in carrying such contract further, such contract to be executed, and if their actions are showing this,
then who will be able to execute the contract in a fair manner? कैसे हो पाएगा कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्शंस ही बोल रहे हैं एक पार्टी के कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने का मन नहीं है, तो दूसरी पार्टी भी क्या कर सकती है उस केस में? तो ये पूरी तरह से एंटिसिपेटरी ब्रीच में आ जाएगा। मान लीजिए एक पार्टी अपना व्हाइट हॉर्स बेचना चाहते हैं दूसरे पार्टी को 50,000 पे, मान लीजिए 10th अगस्त ये डेट डिसाइड हुआ, बट हॉर्स सेल हो रहा है सी को 1st अगस्त को, तो अब इसमें कंडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। A did a contract with B to sell his horse on a particular date, but since he sold his horse before that due date or before that time fixed for the promise or performance, उससे पहले वो हॉर्स बेच दे रहा है किसी दूसरी पार्टी को, तो उसके एक्शन से ये क्लियर है कि वो बी को हॉर्स नहीं बेचना चाहता था और उसने दूसरे पार्टी को हॉर्स सेल ऑफ कर दिया। So this is what anticipatory breach is trying to say. When a party is refusing to perform, he or she is refraining himself or herself from performing any promise before the time fixed for that particular promise, तो उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। अगर वो अपने आप को रिफ्यूज कर रहा है, पीछे हट रहा है, अनविलिंगनेस दिखा रहा है, या तो एक्सप्रेस्ड वे में रिटन या वोकल, या फिर अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से, तो उसे बोलेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म माना जाएगा, क्योंकि प्रोमिसी के पास ऑप्शन होंगे दो, उसके पास दो ऑप्शन होंगे। जो प्रोमिसी है जो सफर कर रहा है, प्रोमिसर का रिफ्यूजल जो सफर कर रहा है, दैट इज प्रोमिसी। और क्योंकि वो अग्रीव्ड पार्टी है, और जैसे कि हम लोग बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की, इससे पहले भी हमने बहुत डिस्कस किया है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में या तो पार्टी के पास एक ऑप्शन रहता है कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, कैंसिल कर दो, या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो अगर आपका मन है, अगर आप करवाना चाहते हो म्यूचुअल अग्रीमेंट पे। तो इसमें भी अग्रीव्ड पार्टी के पास दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और केस ठोको प्रोमिसर पे कि भैया मेरे को डैमेजेस दो, मेरे को मुआवजा दो, कॉम्पनसेशन दो, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ड्यू डेट जब तक आ रही है परफॉर्मेंस की, उससे पहले ये काम प्रोमिसी को करना पड़ेगा, केस ठोकना और डैमेजेस के लिए क्लेम करना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है उसके पास? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो ये बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑपरेशन में है, रनिंग में है। वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट अभी टूटा नहीं है, वो रनिंग में है और वो परफॉर्मेंस के लिए वेट करेगा। और फिर वो पता है क्या करेगा, जब डेट आ जाएगी परफॉर्मेंस की, तो उस डेट पे वो दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मानेगा, जिम्मेदार मानेगा परफॉर्मेंस ना करने के लिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वो अलाइव रखेगा, रनिंग में रखेगा, ऑपरेशन में रखेगा। कब तक? जब तक परफॉर्मेंस की डेट नहीं आ जा रही है, जिस दिन परफॉर्मेंस होनी है ना, उसकी डेट जब तक नहीं आ जा रही है, तब तक वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेशन में रखेगा। कौन? प्रोमिसी। अब इसमें बेनिफिट जो है उसका खुद का भी है, दूसरी पार्टी का भी है। उसका खुद का ये है, मान लो दूसरी पार्टी ने अब कहा, ड्यू डेट आ गई और कहा कि ठीक है हम परफॉर्मेंस करने को तैयार हैं, तो उसका फायदा, ठीक। और दूसरी पार्टी ने भी अपनी डिलीवरी दे दी गुड्स की, या जो भी सर्विस उसको प्रोवाइड करनी थी, एज द केस में भी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा है ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन आप लोग पढ़िए जो इसमें यहाँ लिखी हुई है, बट in this case he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own, and the guilty party, if he so decides on reconsideration, may still perform his part of contract
and can also take advantage of supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract. आप लोग को ये चीज समझ आई? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इसमें फ्रेज क्या लिखा हुआ है? पहली चीज तो ये थी कि पूरी तरह से प्रोमिसी के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, प्रोमिसर के ऊपर केस ठोकने का और फिर उससे कॉम्पनसेशन क्लेम करने का ड्यू डेट से पहले पहले, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मैं ड्यू डेट बार बार उस पर एम्फसाइज कर रही हूँ, तो ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिए, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले पहले। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे कैंसिल नहीं करेगा, रिसेंड नहीं करेगा। तो अगर वो रिसेंड नहीं कर रहा है, वो खत्म नहीं कर रहा है, तो वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को इन ऑपरेशन मान रहा है। और अगर इन ऑपरेशन मान रहा है तो वो वेट करेगा ड्यू डेट का। ड्यू डेट पे जब प्रोमिसर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगा तब वो उसको जिम्मेदार मानेगा कि भैया आपने तो परफॉर्मेंस दी नहीं। इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में रखेगा, अपने भी बेनिफिट के लिए और दूसरी पार्टी के बेनिफिट के लिए भी। और अब इसमें ये लिखा है जो गिल्टी पार्टी है, गिल्टी पार्टी हो गया इसमें प्रोमिसर, गिल्टी पार्टी यानी कि प्रोमिसर। जो प्रोमिसर है, अब इस केस में अगर प्रोमिसी डिसाइड करता है अपना रीथिंक करके, एक सेकेंड थॉट थर्ड थॉट देने के बाद कि ठीक है प्रोमिसर अभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कर सकता है और वो साथ में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज भी ले सकता है। अच्छा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हम लोग ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, उसमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी पढ़ा था, सुपरवीनिंग भी पढ़ा था। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हम अलग अलग बुलेट पॉइंट्स कवर कर रहे थे तो उसमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ये बोलती थी कि जब बिगिनिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट में पता चल जाए कि ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग मतलब मिड वे में, प्रोसेस जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो उसके मिड वे में, या उसमें मान लीजिए कुछ परफॉर्मेंसेस हो गई लेकिन बीच में ऐसा पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है, तो उस केस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस केस में जो प्रोमिसी है, अगर वो ये सोचती है या सोचता है कि जो गिल्टी पार्टी है यानी कि जो प्रोमिसर है वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी परफॉर्म कर सकता है, एडवांटेज ले सकता है, किस चीज का एडवांटेज? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं बेसिकली जो इफेक्ट्स में कवर्ड है। पहला, प्रोमिसी से देखिए, प्रोमिसी के ऊपर जो है एक वरदान दिया गया है प्रोमिसी को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल घोषित करने का। प्रोमिसी या तो परफॉर्मेंस नहीं करेगा या फिर फर्दर परफॉर्मेंस करेगा। मान लीजिए उसने अपने पार्ट में कोई परफॉर्मेंस करी, प्रोमिसर ने भी करी, लेकिन अभी ड्यू डेट नहीं आई है। अब प्रोमिसर अगर मना कर रहा है तो आगे की परफॉर्मेंस से करने से प्रोमिसी बच सकता है। उसके पास पूरा मौका है कि ठीक है प्रोमिसर अगर मना कर रहा है तो हम क्यों आगे परफॉर्मेंस दें। तो अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, डैमेजेस के लिए क्लेम लगाओ, केस फाइल करो प्रोमिसर पे, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि उसको खत्म ना करो, उसको अलाइव मानो। किसको? कॉन्ट्रैक्ट को। ये समझो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है ड्यू डेट तक, ड्यू डेट पे जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है उसके बाद जिम्मेदार ठहराओ प्रोमिसर को और कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रखो। इस केस में क्या होगा, जो गिल्टी पार्टी होगी यानी कि जो प्रोमिसर होगा उसे एक एडवांटेज दिया जाएगा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा फाइनली, और ये एडवांटेज प्रोमिसी देगा अपने एंड से। ठीक है, अगर वो ये सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि in the case he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own and the guilty party.
इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन, इफ ही यानी कि प्रॉमिसी अगर डिसाइड कर रहा है, may still perform his part of contract, promiser अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कर सकता है, and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract. अच्छा, अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आप सबको याद है ना? सबको याद है कि नहीं याद है? तो अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड हो जाएगा, है ना? और इस केस में अगर वॉइड हो गया तो फिर खत्म काम, कोई डैमेजेस नहीं, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये इफेक्ट है एंटिसिपेटरी ब्रीच का। इसके बाद बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसमें जो डेट डिसाइड होती है परफॉर्मेंस की, समझिएगा आप लोग, जो डेट डिसाइड होती है उसमें एंटिसिपेटरी ब्रीच से उल्टा होता है। अगर प्रॉमिस को रिफ्यूज करना होता है, प्रॉमिस का रिफ्यूजल होता है, तो वो उस पर्टिकुलर ड्यू डेट पे होता है। इसमें पार्टीज जो हैं वो अपना अपना प्रॉमिसेस परफॉर्म करती हैं, लेकिन अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दे, अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना करे, तो उसे ब्रीच करते हैं, उसको ब्रीच बोलते हैं। उस केस में दूसरी पार्टी के पास एक राइट हो जाता है एक्शन लेने का उसके अगेंस्ट में जिस पार्टी ने रिफ्यूजल किया है या जो परफॉर्म नहीं कर रही है अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तरह से एक्चुअल ब्रीच तब होती है जब उस पर्टिकुलर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ना हो, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है, दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ी हुई हैं, उसमें से एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म ना करे उस पर्टिकुलर ड्यू डेट पे। इसमें एक ये चीज़ है, इसमें दो वेज हैं जिससे एक्चुअल ब्रीच हो सकती है, कमिट हो सकती है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ड्यू है, यानी कि ड्यू डेट है उस दिन, जैसे मान लीजिए एक पार्टी ने अग्रीमेंट किया टू डिलीवर 100 bags of sugar to B on 1st Feb, but on that particular date he failed to supply 100 bags. Now this is an actual breach of contract. This is an actual breach of contract because on that particular date, due date, whatever the date was decided in that agreement, party A did not deliver whatever he had agreed for. वो उसने डिलीवरी नहीं दी। तो इस केस में जो भी ब्रीच कमिट करी है ए ने ड्यू डेट पे, तो इससे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन अराइज होगी। दूसरी चीज एक्चुअल ब्रीच कब हो सकती है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही, यानी कि एक पार्टी अगर रिफ्यूज कर रही है अपना ऑब्लिगेशन करने से या फेल हो रही है, या तो रिफ्यूजल दे रही है या फेल हो रही है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं अपने एक्सप्रेस्ड टर्म्स में, स्पोकन या रिटन वर्ड्स में, या फिर इम्प्लाइड एक्शन में। तो इम्प्लाइड एक्शन यानी कि हो गया कोड ऑफ कंडक्ट से उसके दिख रहा है कि वो परफॉर्मेंस करने में अनविलिंग है, वो परफॉर्मेंस नहीं देना चाहती है। तो दो केसेस पॉसिबल हैं एक्चुअल ब्रीच के, या तो ड्यू डेट पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, और दूसरा परफॉर्मेंस के दौरान ही एक्चुअल ब्रीच हो सकती है जब एक पार्टी मना कर दे रिटन वर्ड्स में या फिर अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बता दे। समझ आई आप लोग सबको ये दोनों चीजें, एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच बेसिकली कवर करती है वो सिचुएशन जब ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले पहले कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दे, परफॉर्मेंस करने से मना कर दे बेसिकली। एक्चुअल ब्रीच तब होती है जब दोनों पार्टीज या तो ड्यू डेट पे एक पार्टी रिफ्यूज कर दे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने से, और ये सिचुएशन अगर नहीं भी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के दौरान अगर एक पार्टी मना कर रही है या नहीं दे पा रही है परफॉर्मेंस, तो भी एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा।
लेकिन एक्सप्रेस्ड वर्ड्स में या इम्प्लाइड एक्शन में, ठीक है। एक्सप्रेस्ड वर्ड्स भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो इसमें इसके बाद जो चीज़ें कवर हैं वो है रेमेडीज, जो कि हमने इसमें भी पढ़ा था अपने ओवरव्यू में। मेनली इसमें रेमेडीज कवर होंगी दोनों ब्रीचेस की, एंटिसिपेटरी की भी एंड एक्चुअल की भी, ठीक। तो अब अगर हम लोग बात करें रेमेडीज की, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज ये भी चीज़, क्योंकि अगर बहुत चीज़ें अगर आज एक ही क्लास में डिस्कस हो गई तो उसमें भी आप लोग सबको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं चाहती हूँ बहुत इजी वे में डिस्कशंस हों एक एक टॉपिक के। अच्छा, अगर रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज में सबसे पहले आता है सूट फॉर डैमेजेस, केस ठोकना, जिसकी भी मैं बात करी थी एंटिसिपेटरी ब्रीच में। सूट फॉर डैमेजेस, नाउ व्हाट डज दिस section mean? Okay, we'll try to interpret whatever it's written in the institute's module. When a contract has been broken, the party who suffers by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach. एक कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो जो पार्टी सफर कर रही है ब्रीच से, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी, उसे पूरा पूरा हक है डैमेजेस या मुआवजा या कॉम्पनसेशन मिलने का। कोई भी लॉस अगर उसको हुआ है प्रॉमिसर की वजह से, या मान लो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो उसकी वजह से, और वो लॉस या तो ऐसे अराइज हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली जो भी परफॉर्मेंसेस हुई उसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से लॉस हो गया, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है कि दोनों पार्टीज को या एक पार्टी को पता था कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये परफॉर्मेंसेस होंगी तो लॉसेस हो सकते हैं। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, अग्रीमेंट करते टाइम, उसके जो भी मटेरियल चीज़ें थी उसके नेचर से पता चल रहा था कि ये लॉस हो सकते हैं, पार्टीज को पता चल रहा था। या फिर अगर उनको पता नहीं भी था तो जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट होती गई धीरे धीरे परफॉर्मेंस करते टाइम, उससे ऐसा पता चल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो सकता है परफॉर्मेंस करते टाइम। तो उस लॉस का कॉम्पनसेशन उस पार्टी को दिया जाएगा जिसने सफ़र किया है, ठीक है। और ये कॉम्पनसेशन इसमें साफ साफ लिखा है, कोई अगर इनडायरेक्ट लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, कोई रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस हुआ है अगर, तो उसके लिए नहीं दिया जाएगा। रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस, रिमोट का मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? रिमोट एरियाज हम लोग ने पढ़े हैं। रिमोट का मतलब क्या हुआ, जो मान लीजिए पॉपुलेशन जहाँ बसती है एक पर्टिकुलर सिटी में, एक प्रोविंस में, उससे थोड़े दूर दराज वाले एरियाज, जिसको हम रिमोट एरियाज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या मीनिंग हो सकता है, इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है रिमोट का? मान लीजिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा है जिसमें जो मटेरियल टर्म्स हैं वो तो सही चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई एग्जीक्यूट करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसकी जो लॉस जिनकी वजह से नहीं होता है। अगर लॉस मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करते टाइम हो भी रहा है तो वो मटेरियल चीज़ों से अगर हो रहा है तो समझ आता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर रही हैं लेकिन तब भी वो इतनी रेलेवेंट नहीं है
उनकी वजह से जो भी, अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी वजह से लॉस नहीं हो रहा है, तो उस चीज के लिए कॉम्पनसेशन उन पर्टिकुलर चीजों का नहीं मिलेगा, उन रिमोट चीजों का नहीं मिलेगा जिनका इतना रिलेवेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। वो एक सपोर्ट देने के लिए खड़ी है कॉन्ट्रैक्ट में, या कह सकते हैं एंसिलरी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन चीजें होती हैं, अगर उनकी वजह से लॉस हो भी रहा है तो डैमेजेस भी उन्हीं के लिए मिलेंगे, रिमोट चीजों के लिए नहीं मिलेंगे। और इसमें दूसरी चीज क्या लिखी है, when an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default, as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract. एक चीज तो ये बोल रही है, एक सेक्शन 73 में एक पार्ट ये बोलता है कि एक अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है तो जो पार्टी सफर कर रही है, अग्रीव्ड पार्टी है, उसे पूरा पूरा लॉस मिलेगा, सॉरी लॉस कह रही हूं मैं, पूरा पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा लॉस का। और अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो भी रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो अब इसके अलावा दूसरा जो हमारा ये पैराग्राफ है वो ये बोलता है, कोई भी अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, किसी भी चीज की जिम्मेदारी अगर क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होती, वो फिनिश नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती, तो जो भी पर्सन अगर इंजर हो रहा है, जिसको सफरिंग हो रही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्चार्ज ना होने से, उस ऑब्लिगेशन के डिस्चार्ज या एग्जीक्यूट ना होने से अगर किसी दूसरे पर्सन को इंजरी हो रही है, हार्म हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा उस पार्टी से जो डिफॉल्ट कर रही है, जो प्रॉमिस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, उस पार्टी से जो प्रॉमिस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है वो उस पार्टी से कॉम्पनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। तो ये बात करी गई है सेक्शन 73 की, सूट फॉर डैमेजेस। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है और एनालिसिस क्या बोलता है, पहले हम एनालिसिस पढ़ते हैं, वो आपको समझ आएगा। The Act has laid down the rules as to how the amount of compensation is to be determined. अब इसमें बेसिकली यही लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो जो पार्टी सफर कर रही है इस ब्रीच से, उसे पूरी तरह से कॉम्पनसेशन मिलेगा उस पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। कोई भी लॉस या डैमेज उसने सफर किया है, किसने, जो सफर कर रही है। अच्छा, कॉम्पनसेशन जो भी है वो किस चीज के लिए क्लेम कर सकते हैं, जो कि नेचुरली अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे जैसे इवेंट होते जा रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है, उसमें जो जो भी लॉस अराइज हो रहे हैं उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा। और कॉम्पनसेशन उस चीज के लिए भी मिल सकता है अगर जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उनकी नॉलेज में था कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि इस पर्टिकुलर इवेंट में या इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में लॉस हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी कॉम्पनसेशन क्लेम होगा। और इसके अलावा स्पेशल डैमेज क्लेम अगर करना है तो उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा। और जो पार्टी सफर कर भी रही है ब्रीच से, उसे सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो और अगर स्पेशल उसको कॉम्पनसेशन चाहिए तो उसके लिए उसको पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस पार्टी को जिसने ब्रेक किया है या डिफॉल्ट किया है। एंड इसके अलावा ये लिखा है कि अगर बहुत रिमोट लॉस है जिसका ज्यादा रेलेवेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, तो उस चीज के लिए कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ये एनालिसिस किया है सेक्शन 73 का। और इसके अलावा क्या बात करी है, रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस, जो कि हमारी सेकेंड रेमेडी है, ठीक है।
ये आप लोग को समझ आया? पहला पार्ट समझ आया? सेक्शन 73 समझ आया जो इसमें कहना चाह रहा है? ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई पार्टी लॉस सफर कर रही है दूसरे पार्टी की वजह से क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है, सीधी सी बात है, उसे डैमेजेस क्लेम करने का पूरा राइट है और जो भी लॉस सफर किया है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा उसका। लेकिन अगर कोई रिमोट लॉस है, इनडायरेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में इतना रेलेवेंट नहीं है और बहुत माइन्यूट सा है, कह सकते हो बहुत पेटी सा है, तो फिर उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने हैं सफरर पार्टी को या अग्रीव्ड पार्टी को तो उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा। बाकी जो भी इवेंट्स हुए हैं परफॉर्मेंस के टाइम पे उन सब के रिस्पेक्ट में उसको डैमेजेस मिलेंगे। नेचुरली जो अकर हुए, ये नहीं कि आर्टिफिशियली या इंटेंशनली बनाए गए, उनके लिए कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम अगर उन्हें लगा, ऐसा उनको फील हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये पर्टिकुलर इवेंट्स ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनकी वजह से लॉस हो सकता है, तो उस रिस्पेक्ट में भी कॉम्पनसेशन पूरी तरह से मिलेगा। जो पार्टी बेसिकली डिफॉल्ट कर रही है वो डिनाई नहीं कर सकती इस फैक्ट से, क्योंकि दोनों पार्टीज में डिस्कशन हुआ था और दोनों में अगर ये डिसाइड हुआ कि अगर इसमें लॉस हो भी सकता है और प्रायर अग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ कि हम लॉस अगर होगा भी तो आपस में कॉम्पनसेट करेंगे, तो उसमें कॉम्पनसेशन फिर बाद में देना भी पड़ेगा, उससे कोई भी पार्टी मुकर नहीं सकती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से कवर करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए and do not forget to subscribe my channel, press the bell icon for latest updates, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, सी ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से है, और बाकी आपको जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे और पढ़ते रहिए, साथ साथ रिवाइज ज़रूर करिए हर एक सेशन को। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बाकी इसके टॉपिक्स कवर करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।